In the unit 4, we have done with the transaction basics. Okay, what is transactions? Okay, now leave it. Jyoti, छोड़ दो, कोई बात नहीं, चलेगा, चलो. Okay, yes. In the last lecture, मतलब yesterday's lecture, I have revised the basic of transaction. Okay, what is transaction? Transaction properties. What is concurrency control and concurrency control algorithms? Okay, that we have already covered. Okay, in the last lecture, I have revised all these things. So today I will not again revise. Okay. What is transaction? You know. Transaction properties, you know. Okay, what is concurrency? That also you know. Okay, what is concurrency control? Why we need the concurrency control? That also you know, and we have revised so many times. In the last lecture also I have explained what is concurrency control, why we need to control the concurrency. Okay, in short, concurrency control matlab kya, multiple transaction can be executed simultaneously. Okay, if yes, Sarfraz. Okay, if we will not handle the concurrency, okay, or you can say if you will not control the concurrency, that there may be chances to occur some problems. Which problems? Lost update problems, dirty read problems, or unrepeatable read or inconsistent retrievals problems. All these problems may be occur due to concurrency. Okay, but concurrency is also needed. Okay, concurrency important है. Why? Because there is possibility है कि multiple. Yes, now we Pratap, अभी आ रही मेरी आवाज? Now it is clear. Okay. Yes. So concurrency, there is possibility that multiple transaction may be occur in the system simultaneously. Okay, if you are using any web shopping websites or you are doing any transaction, तो possible है कि at the same time, okay, at the same time at another place कि कोई और person, another persons are doing the transaction also. Okay, so chances है. So at that time, to remove or to recover from all these problems, there are some protocols. Okay, some protocols are there to control the concurrency. So concurrency control protocols, all are the concurrency control protocols, log-based protocol, two-phase protocol, timestamp based protocols, and validation based protocol. Log-based protocol, there are two types of log: shared log, exclusive log. Okay, what is shared log? What is exclusive log? Now you know. Share matlab only read logs. When the transaction acquired the shared log, the transaction can only read the data, not write the data. Okay, exclusive log matlab if the transaction obtained this log, okay, or gain this log or acquired this log, the transaction can update the data. Okay, transaction can update the data. So that is an exclusive log. There are four types of log protocol. The first is simplicity log protocol. Okay, the second is pre-claiming log protocols. The third is two-phase locking protocol. Okay, strict two-phase locking protocols I have already covered or discussed in the previous lectures also. Yesterday lectures also I have revised. So today we will start with the new protocols. Okay, timestamp protocol also, you know. Okay, the times जो जल्दी आएगा, ठीक है, in the system the transaction come first, it execute first. Okay, that is timestamp protocol. The next is validation based protocol. In the yesterday's lecture we have यहाँ से हमारा बाकी था. Now today we will continue with this validation based protocol. Okay, log based protocol, phase protocols, timestamp ordering protocols. Now the next is validation based protocols. All are the rules regulations. Okay, protocols मतलब क्या? Rules regulations that we have to follow. Okay, we have to do coding like this. Okay, the protocols है, तुमको coding ऐसे करना है कि जो इन्होंने condition दिखाया है. Okay, according to this condition we have to write our logic. Okay, we have to make our logic. The validation based protocol. What is the meaning of validation? Who will tell me what is the meaning of validation? Validation मतलब क्या? What is the use of validation? In general, validate करना मतलब क्या? हम लोग बोलते हैं ना validate हुआ है कि नहीं, validate करना है. Okay, what is the meaning of validation? Approval. Yes, yes, Siddiqui Tariq. Okay, approval, or you can say confirm. Yes, Gauri Nishad. Okay, yes, or you can say to check करना. Okay, correct है कि नहीं? Okay, correct है कि नहीं वो check करना. Yes, the act of confirming something as true or correct. Yes, Sarfraz. Okay, so validation based protocol. Okay,
ओके वैलिडेट करना, उसको करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना, अप्रूव करना, कंफर्म करना, ऑल आर द वर्ड्स, okay, similar words you can use instead of validation. The meaning of validation, the validation phase is also known as optimistic concurrency control technique. Usko optimistic concurrency control bol bhi you can say. In the validation based control, the transaction is executed in following three phase. Okay, the transaction is executed in three phase. There are three phase, okay, in this protocol. The first is read phase. The first is read phase, the second is validation phase, and the third one is write phase. Okay, read phase, yes, the read phase. In this phase, the read phase, in this phase the transaction T is read and executed. Okay, in this phase read phase, in this phase इसमें क्या होगा, the transaction T is read and executed. Okay, it is used to read the values of various data items and store them in temporary local variables. It can perform all the right operations on temporary variables without an update to actual database. Okay, मतलब फर्स्ट फेज में क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन है, ओके सपोज कि ट्रांजैक्शन सिस्टम में आ रहा है, the transaction is read and executed. Okay, it is used to read the various values of various data items and store them in temporary local data variables. मतलब फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम आ रहा है, उनको वो टेबल में कुछ चेंजेस करना है या तो ए का अमाउंट जो बी में ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो भी डेटा पे इसको काम करना है, द डेटा विल बी स्टोर्ड इन लोकल वेरिएबल्स. ओके, डेटा जो भी डेटा पे इसको काम करना है वो डेटा को वो क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल्स में दे विल स्टोर. इसके पहले वाले में क्या था, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या था कि ट्रांजैक्शन को कोई डेटा पे काम करना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड द लॉक फॉर दैट डेटा. ओके, वो लॉक डेटा के लिए उनको क्या चाहिए था, लॉक चाहिए था. once the transaction get the or acquire the lock, then they are started to working on that data. but इसमें क्या है, क्या होगा इन दिस प्रोटोकॉल, इन दिस फर्स्ट फेज रीड फेज में क्या होगा, ट्रांजैक्शन को जो भी डेटा पे काम करना है, ओके, या तो जो डेटा को अपडेट करना है या तो रीड करना है, उसको वो लोग पहले वो ट्रांजैक्शन क्या करेगा, उसको स्टोर्ड इन टेम्पररी लोकल वेरिएबल्स. ओके, फॉर एग्जांपल एक टेबल है, वो टेबल को मॉडिफाई करना है, तो जो टेबल पे उनको काम करना है, जो डेटा पे उनको काम करना है, उनको वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, लोकल वेरिएबल्स में. इट कैन परफॉर्म ऑल द राइट ऑपरेशन ऑन टेम्पररी वेरिएबल्स. ओके, जो टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके रखा उन्होंने डेटा, वो जितना भी राइट ऑपरेशन है वो सारा कहाँ पे होगा, दैट टेम्पररी वेरिएबल्स में होगा, विदाउट एन अपडेट टू द एक्चुअल डेटाबेस. मतलब डायरेक्टली वो एक्चुअल डेटाबेस को हाथ नहीं लगाएंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जितना भी डेटा चाहिए, ट्रांजैक्शन को जितना भी टेबल्स चाहिए, तो टेबल्स में जो जो भी डेटा उनको चाहिए, all the data will bring they into the temporary local variables. Okay, and after that उनको जो भी modification करना है वो temporary variables में करेंगे, actual database को they will not touch. Okay, the second phase is validation phase. In this phase the temporary variables value will be validated against the actual data to see if it violates the serializability or not. Okay, जितने भी ट्रांजैक्शन सिस्टम्स में है वो सब क्या करेंगे, जितना भी उनको काम करना है सारे डेटा को वो लोग एक्चुअल डेटाबेस में से लाके टेम्पररी डेटाबेस में स्टोर करेंगे, एंड देन वो लोग टेम्पररी डेटाबेस में अपना जो भी काम करना था वेरिएबल्स पे, वो वेरिएबल्स में वो काम करेंगे. आफ्टर लास्ट में उनका सबका ट्रांजैक्शन का अपना काम खत्म हो गया, ओके, देन वो क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे. ओके, उनका जो टेम्पररी वेरिएबल्स का वैल्यू उसको वैलिडेट करेंगे विद द एक्चुअल डेटाबेस के साथ. ओके, यस, ये एक्चुअल में राइट करेक्ट है कि नहीं. and then in the right phase if the validation of transaction validate, okay, अगर validate है then the temporary result जो है return to the database और system, otherwise the transaction is all. मतलब क्या हुआ, उन्होंने चेक कर लिया ना ये करेक्ट है, करेक्ट स्टेट में डेटाबेस है, वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाएगा. देन आफ्टर राइट फेज में, थर्ड फेज में क्या होगा, एक्चुअल डेटाबेस में क्या होगा, चेंजेस होगा. कहाँ पे चेंजेस होगा, एक्चुअल डेटाबेस में. तो दिस इज वैलिडेशन, मतलब डायरेक्टली ओरिजिनल डेटाबेस पे जो ट्रांजैक्शन है वो वर्क नहीं करेंगे. ट्रांजैक्शन को जो भी डेटा चाहिए, ऑल डेटा they bring into the temporary local variables, they are working on the temporary local variables. after उनका राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन को जो भी अपडेशन करना है वो अपडेशन होने के बाद they will check कि नाउ अभी ये जो जितना भी डेटा टेम्पररी वेरिएबल्स में है, अगर उसको हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे एक्चुअल डेटाबेस में, तो डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में तो नहीं जाएगा. ओके, वैलिडेट है कि नहीं, वो वैलिडेट होने के बाद वैलिडेशन फेज में दे विल वैलिडेट, एंड देन इन द राइट फेज, लास्ट फेज में वो क्या करेंगे, जो फाइनल जो चेंजेस है वो डेटाबेस में दे विल डू. ओके, दिस इज अ वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल. ओके, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल.
here each phase has the following different time stamp. हर एक को time stamp दिया जाएगा, okay, time दिया जाएगा. It contains the time ti when start ti मतलब क्या? It contains the time when ti start its execution. What is ti transaction? फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो उसको बोला जाएगा T1, सेकंड ट्रांजैक्शन है T2, 50 ट्रांजैक्शन है तो T50 आई मतलब वो जो भी ट्रांजैक्शन जो भी नंबर्स का वो ट्रांजैक्शन का नेम. ओके, तो ट्रांजैक्शन जो भी ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं डेटाबेस में, ट्रांजैक्शन क्रिएट होना, देन उसको जो भी डेटा चाहिए उसको लाके स्टोर करना टेम्परेरी वेरिएबल्स में, तो वैलिडेशंस करना, तो हर एक के साथ क्या हर एक ऑपरेशन को टाइम स्टैम्प असाइन किया जाएगा. तो कंटेन्स द टाइम when ti finish its read phase and start with validation phase. Okay, if why ये टाइम की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज लास्ट में डेटाबेस में स्टोर करना है ना, तो लास्ट में एक्चुअल वैल्यू डेटाबेस में स्टोर करना है, तो वो टाइम्स के हिसाब से करेंगे कि यस लास्ट अपडेट यहाँ पे हुआ था, उसके बाद लास्ट अपडेट कहाँ पे हुआ है, उसके पहले अपडेट कहाँ पे हुआ है, तो वो जो मिसिंग नहीं हो जाना चाहिए. ओके, कोई भी ऑपरेशन मिस नहीं हो जाना चाहिए, इसीलिए दे आर यूजिंग द टाइम स्टैम्प. ओके, टाइम स्टैम्प अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हमारा एग्जांपल लेते हैं इन द क्लासरूम में, ठीक है, कि वैलिडेशंस मैं आपको बोलूंगी यस कि एक ही बुक हमने रखा था क्लास बुक में, सॉरी क्लासरूम में, कि वो एक ही बुक में सबको अपना अपना असाइनमेंट लिखना है, ठीक है, तो वो लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल के लिए लिया था. अगर हम लोग ऐसे डिसाइड करें कि नहीं सबको पहले अपना खुद के नोटबुक में आंसर लिखना है असाइनमेंट्स के जितने स्टूडेंट्स हैं, देन आफ्टर हम लोग लास्ट में जो एक कॉमन बुक रखा था डेटा मेन डेटाबेस हमारा, उसमें हम लोग चेंजेस करेंगे, बट सबको क्या करना है कि अपना अपना टाइम नोट डाउन करके रखना है कि तुमने असाइनमेंट 1 लिखा है कभी लिखा, इसने असाइनमेंट 1 कभी लिखा, इसने असाइनमेंट 2 कभी लिखा, ठीक है, तो टेम्परेरी है, मतलब अपने अपने नोटबुक में लिखोगे तो वो टेम्परेरी हो जाएगा. देन लास्ट में फाइनली मैं चेक करके लिखूंगी कि यस इसने असाइनमेंट 1 ये टाइम पे खत्म किया, इसने ये टाइम पे खत्म किया, इसने असाइनमेंट 2 ये टाइम पे खत्म किया, अकॉर्डिंग टू दैट कि असाइनमेंट 1 जो है वो 2 टाइम्स अपडेट नहीं होना चाहिए, वो नोटबुक में एक ही बार अपडेट होना चाहिए. तो आई विल चेक, ओके, देन आई विल अपडेट द मेन नोटबुक. ओके, तो ये पूरा तो हम लोग उसको नहीं ऐसे में कंसीडर कर सकते, बट थोड़ा सा फॉर अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे सोच सकते हो. ओके, कि वैलिडेशन फेज में क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन है दे विल नॉट डायरेक्टली वर्क विद द एक्चुअल डेटाबेस. वो क्या करेंगे, उनको जितना भी डेटा चाहिए वो डेटा कहाँ पे लाके रखेंगे, टेम्पररी वेरिएबल्स में. ओके, तो उनको जो वो डेटा पे जो भी काम करना, अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, वो टेम्पररी वैल्यूज पे दे विल वर्क. एंड लास्ट में आफ्टर हर एक ट्रांजेक्शन का अपना काम खत्म हो जाएगा, देन सिस्टम विल चेक कि कौन से ट्रांजेक्शन कौन से टाइम पे आया, उसने वो टेम्पररी वेरिएबल्स में क्या चेंजेस किया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लास्ट में डेटाबेस में एक्चुअल डेटाबेस में वो लोग चेंजेस करेंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस सिस्टम. ओके, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, उसका कोडिंग करेंगे एट द टाइम ऑफ database creation. So that is a validation based protocol. What is the intention? Intention क्या है हमारा कि जो database में data है, okay, वो consistent state में होना चाहिए. कैसे state में होना चाहिए? Consistent state में होना चाहिए. Okay, so this is a validations protocols. All are the validations protocols. Theory है थोड़ा सा, okay, you will run, you will read, then you will get the idea. ठीक है, ऐसे इतना थोड़ा मिक्सिंग वाला टॉपिक है. ओके, बट आप उसको शांति से एक बार पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज अ concurrency control protocols. Okay, the next topic is that is transaction serializability. Okay, DBMS, and one more topic is that, sorry, database recovery. Okay, तो ये रिकवरी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, हाउ टू रिकवर द डेटा, ठीक है, डेटा रिकवर कैसे करना है, दैट वी विल लर्न later. Today we will start this topic, transaction serializability in DBMS. Okay, थोड़ा थियरी है ये यूनिट में. ओके, कमांड्स वगैरह इतना है नहीं, थियरी है, तो उसको you have to read the theory, you have to understand the concepts. Okay, practical है तो हम लोग रन करके दिखाती हूँ मैं आपको, but theory है तो you have to understand the theory. Okay, transaction serializability in DBMS. Okay, serializability, serial transaction, or you can say serial. Okay, what is the meaning of serial? Serial का meaning क्या है? SERIAL, serial transaction मतलब क्या? Serial, what is the meaning of serial? SERIAL, serial.
सीक्वेंस 1 by 1, यस वेरी गुड, ओके 1 by 1, ओके तो वही हमको पढ़ना है, that concept transaction 1 by 1 transaction in DBMS, okay serializability. Suppose we have two concurrent transaction T1 and T2, okay दो transaction आ रहे system में simultaneously T1 and T2 where both are updating the data D, दोनों एक ही data को update कर रहे हैं, okay suppose we have two concurrent transaction in the system T1 and T2, दोनों transaction simultaneously system में आ रहे हैं, both are updating the data D, ओके दोनों को एक ही डेटाबेस अपडेट करना है. सपोज ओके सपोज T1 वही प्रॉब्लम्स है, वो लॉस्ट वाला जो प्रॉब्लम्स है ना, वही प्रॉब्लम्स लॉस्ट अपडेट वाला प्रॉब्लम से एक्सप्लेन किया. तो प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, तो वन कंसेप्ट इज दैट शेड्यूल और सीरियलाइजेशन. ओके जो प्रीवियस हमने जो प्रॉब्लम्स देखा लॉस्ट अपडेट या तो डर्टी रीड वाले जो प्रॉब्लम्स देखे, ठीक है उसको ओवरकम करने के लिए प्रोटोकॉल्स भी है, प्लस प्रोटोकॉल्स जो हम देखा वो तो है, प्लस एक ये कंसेप्ट भी है कि सीरियलाइजेबिलिटी, वी कैन अप्लाई दी सीरियल ट्रांजैक्शन. तो जो प्रॉब्लम्स है दैट कैन बी अवॉइडेड. ओके तो वो प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पे आकर बताया है. जस्ट आई एम रीडिंग दिस, वी हैव ऑलरेडी डन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रॉब्लम्स. ओके सपोज T1 started first and read the data for D for update. ओके T1 ने पहले थोड़ा स्टार्ट किया, ओके और उसने डेटाबेस का जो डी था डेटा, ठीक है उसको अपडेट किया, रीड किया, पहले तो रीड किया. As soon as T1 read the data, जैसे T1 ने डेटा रीड किया वैसे सेकंड ट्रांजैक्शन स्टार्टेड एंड दी रीड डी फॉर इट्स अपडेट. As soon as T2 reads the D, जैसे T2 जो है ट्रांजैक्शन डेटाबेस को रीड करा वैसे T1 ने उसमें अपडेट कर दिया कुछ, तो डेटाबेस का जो वैल्यू दैट इज चेंज हो गया. ओके वंस T1 इज कंप्लीट, T1 ने अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया, तो T2 क्या कर रहा है, अब डेटा चेंज कर रहा है. ओके तो हियर T2 इज अनअवेयर ऑफ T1, मतलब सेकंड ट्रांजैक्शन को पता ही नहीं है. ओके T1 ने कुछ तो अपडेट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रॉब्लम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स. ओके क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन को नहीं पता है कि हम लोग एक ही डेटाबेस पे काम करें और किसने कौन सा वैल्यू चेंज किया. तो ये जो ट्रांजैक्शन है मोस्टली ये ट्रांजैक्शन ना एम्प्लॉइज जो है कि एक ही डेटाबेस पे काम करते हैं एट दैट टाइम ये प्रॉब्लम्स आकर हो रहा है. ठीक है फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस हमने क्रिएट किया, वो डेटाबेस को वी ऑल कैन यूज, ओके साइमल्टेनियसली, मतलब मैं भी उसको यूज कर सकती हूँ, आप लोग भी उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है तो अगर उसमें हमने कोई रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह नहीं उसमें हमने डाला है, ठीक है तो क्या होगा कि मैं डेटाबेस में कुछ चेंज करूँ साइमल्टेनियसली और कुछ स्टूडेंट आके वो डेटाबेस पे काम कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि वो अपने घर से वो डेटाबेस पे काम कर रहा है और मैं कुछ चेंजेस करूँ, मेरे चेंजेस करने से पहले उसने डेटाबेस का वैल्यू रीड किया हुआ है. ओके और वो डेटाबेस वो अपने डेटा पे काम कर रहा है. ठीक है तो क्या हो जाएगा कि मैं भी चेंजेस करी वो भी चेंजेस करे, बट हमको पता ही नहीं कि फाइनल वैल्यू कौन सा उसमें हमको डालना है. तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है उसको हम लोग अपडेट लॉस डर्टी रीड्स ये प्रॉब्लम्स पॉसिबल है. तो उसको चेंज करने के लिए, ठीक है उसको चेंज मतलब उसको रिकवर करने के लिए, लॉस्ट अपडेट को रिकवर करने के लिए ट्रांजैक्शन आर ग्रुप एंड एग्जीक्यूटेड सीरियली सॉरी ट्रांजैक्शन को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग, सीरियली 1 by 1. जैसे आगे वाले टॉपिक्स में हमने देखा कि वी कैन असाइन द प्रोटोकॉल्स असाइन कर सकते हैं. तो one more solution is that कि serial transaction we can perform. Okay how to perform the transaction serially, suppose T1 is allowed to read and write the D. Okay once it completes write, then T2 is allowed to read D and then we will have updates done by T1 as well as T2. Okay मतलब जब transaction T1 काम कर रहा है डेटाबेस को तो हम लोग T2 को अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है हम लोग क्या करेंगे, T2 को अलाउ नहीं करेंगे सेम डेटा पे काम करने के लिए. बिफोर दैट हम लोग ने वही करे थे, बट हम लोग किसके थ्रू करे थे, प्रोटोकॉल थ्रू करे थे. ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ट्रांजैक्शन T1 अपना काम खत्म करेगा, उसके बाद ही वी विल अलाउ दी T2 टू एक्सेस दैट डेटा. ओके the first update will however change by the T2, the update of T1 will be stored in undo log or rollback segment. Clear? Hence we will know at least there is some value in between transaction begin and end. Okay तो इससे क्या हो जाएगा कि हमको पता चलेगा कभी इसके पहले मेरे पहले कोई तो डेटाबेस में अपडेट किया है तो उससे ये चेंजेस किया. यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ ड्राइव. ओके ड्राइव गूगल ड्राइव जो है, ठीक है हम उस पर काम करते हैं, तो जब उसको हम लोग एक ड्राइव में डेटा शेयर किया है बिटवीन द डिफरेंट पीपल्स, तो अगर मैंने उसमें कुछ चेंज किया है ना तो मेरे बाद जो बंदा आएगा ना उसको ऊपर लिख के आएगा कि इसके ये जो डेटा है अभी फ्यू मिनट्स पहले या तो फ्यू सेकंड्स पहले
ये उसने ये चेंजेस किया हुआ है। ओके, ऐसे लिख के आता है, यू कैन सी। आप कभी गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट शेयर किया होगा आपके साथ कोई फ्रेंड्स ने, या तो करके लिखना ये एग्जांपल। एक गूगल ड्राइव में एक शीट बनाओ, कोई भी एक्सेल शीट या तो वर्ड बनाओ, ठीक है, उसमें आप वो जिसके साथ आप शेयर करोगे ना, वो स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर पाएंगे। देन जिसने आप उसको ओपन किया, तो फॉर एग्जांपल आपके पहले किसी ने उसमें चेंजेस किया होगा, तो ऊपर लिख के आएगा कि द चेंजेस आर डन बाय दिस पर्सन बिफोर फ्यू मिनट्स, बिफोर 10 मिनट्स। ओके, हाँ, ओके, तो ये उन्होंने क्या किया है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, तो ये हमको पता चलेगा कि यस ये अभी किसने यूज किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये वी कैन अंडरस्टैंड कि यस मेरे पहले यहाँ पे किसी ने काम किया, तो उसने कुछ तो चेंजेस किया हुआ है। ओके, तो डेटाबेस में भी वी कैन अप्लाई दिस। ओके, तो ड्राइव में तो हमको ऐसे है कि मल्टीपल हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 1 मिनट। ओके, तो वी हैव वन सॉल्यूशन कि हम लोग ट्रांजैक्शन को सीरियली एग्जीक्यूट करें। ओके, यस, कहाँ थे हम लोग? Yes, the such a grouping of transaction, okay, grouping of transaction and defining the order of execution is known as scheduling or serialization. Okay, grouping of transaction and defining the order of execution. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम जो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं हम लोग उसका ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे कि पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन एग्जीक्यूट होगा, देन कौन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट शेड्यूलिंग। ओके, शेड्यूलिंग कंसेप्ट वी हैव लर्न इन द ऑपरेटिंग सिस्टम के। शेड्यूलिंग मतलब क्या, कौन सा प्रोसेस सिस्टम में कब एग्जीक्यूट होगा, तो सेम वैसे कौन सा ट्रांजैक्शन सिस्टम में कौन से डेटा को कब एक्सेस करेगा। ओके, व्हेन द ट्रांजैक्शन कैन अपडेट दैट डेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग और सीरियलाइजेशन। ओके, दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन गारंटी आइसोलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, अगर हम लोग ऐसे ट्रांजैक्शन को अलाउ करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन गारंटीज आइसोलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइसोलेशन मतलब एक ट्रांजैक्शन सेकंड ट्रांजैक्शन से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ओके, मतलब एक ट्रांजैक्शन अपना पूरा काम खत्म करेगा, उसको जितना टाइम दिया था उतना टाइम में ट्रांजैक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूशन, एंड देन नेक्स्ट जो है ट्रांजैक्शन, इट कैन स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, it will not have any dirty reads and no repeatable reads, deadlocks or lost update issue. Obviously एक रिसोर्स पे या तो एक डेटाबेस पे एक ही बंदा काम कर रहा है, एक ही पर्सन को अलाउ किया है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट को अलाउ किया है, तो ऑब्वियसली इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, a schedule is a process of grouping the transaction into one and executing them in a predefined order. ठीक है, what is schedule? तो schedule जो हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग किया था, तो we can also schedule with our transaction also. ओके, वो कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रांजैक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस। सिस्टम में जितना भी ट्रांजैक्शन आ रहा है उसका हम लोग ग्रुप बनाएंगे, एंड एग्जीक्यूटिंग देम इन अ प्रीडिफाइंड ऑर्डर, एंड एग्जीक्यूटिंग देम इनटू द प्रीडिफाइंड ऑर्डर। पहले से हम लोग उनका ऑर्डर में भी डिसाइड। ओके, a schedule is required in a database because when some transaction execute in parallel, they may affect the result of transaction. Okay, why we require the schedule? क्यों जरूरत पड़ी शेड्यूल करने के लिए? Because when some transaction execute in parallel, they may affect the result of transaction. एक दूसरे को वो इंटरफेयर कर सकते हैं। Means if one transaction updating the value which the other transaction is accessing, then the order of these two transaction will change the result of second transaction. So to overcome ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए we can schedule the transaction. Hence, a schedule is created to execute the transactions. A schedule is called the serial schedule if the transaction in the schedule are defined to execute one after another. Okay, जो हमने schedule decide किया उसको हम लोग serial कब बोलेंगे? When एक के बाद एक transaction हम लोग access करेंगे तभी। ठीक है, a transaction is said to be serializable if it is equivalent to serial schedule. एक ही word है वो, इतना कुछ उसमें है नहीं। Okay. चलो, एक example we are covering. Consider two cases. Okay, we can see that irrespective of the order of execution, the transaction result in the same state. Okay, and they can be scheduled seriously, and hence this transaction are serializable. देखते हैं हम लोग। चलो, transaction T1, okay, transaction T1 system में है, okay, X Y Z are the data, okay, different data है, and there is another more transaction T2 है,
ठीक है, T2 है। इनिशियली x जो है कॉलम यू कैन से और डेटा जो उसका वैल्यू 500 है, तो y का वैल्यू 500 है, z का वैल्यू 500 है। ओके, अगर हम लोग सीरियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सीरियल मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन T1 जो है, ठीक है, अपना पूरा एग्जीक्यूशन खत्म करेगा, डेटाबेस में चेंजेस करेगा, देन सेकंड ट्रांजैक्शन क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा एंड देन उसको वो अपडेट करेगा। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रॉब्लम जो था लॉस्ट अपडेट, दैट विल बी सॉल्व। ओके, सी यहाँ पे 3 डेटा आइटम्स है x y z। ओके, ट्रांजैक्शन T1 है, T2 है, बट पहले क्या किया है, T1 को अलाउ किया है कि उसको जो भी ऑपरेशन करना है ट्रांजैक्शन T1 कैन परफॉर्म। ओके, तो वो क्या करा है, x का वैल्यू माइनस करा है, उसको अपडेट करा है, y के वैल्यू में उसको ऐड करा है एंड राइट y। तो फाइनली डेटाबेस में वैल्यू कितना है, 400 600 500। नाउ T2 अलाउज टू एक्सेस दैट डेटाबेस। तो T2 अभी क्या करेगा, उसको फाइनल वैल्यू, T2 कैन नाउ रीड दिस वैल्यूज। T2 क्या करेगा, ये वैल्यूज रीड करेगा, x का वैल्यू 400 है, y का 600 है, z का 500 है। नाउ T2 उसको जो भी अपडेशन करना है दे विल परफॉर्म एंड लास्ट में डेटाबेस को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो ये क्या हो गया कि कंसिस्टेंट स्टेट में है। कौन सा स्टेट में, कंसिस्टेंट स्टेट में। अगर T2 सिस्टम में पहले आ रहा है तो लेट दिस T2 कंप्लीट इट एग्जीक्यूशन फर्स्ट। ओके, T2 को अपना काम पहले खत्म कर दो, देन T1 अपना खत्म करेगा। तो अगर T1 भी पहले एक्सेस कर रहा है तो T2 एक्सेस करेगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट व्हेन वी अलाउ द सीरियल ट्रांजैक्शन, ओके, ये सीरियल ट्रांजैक्शन है, तो पहले T1 अपना काम खत्म करेगा, उसके बाद T2। ऐसे नहीं कि T1 काम कर रहा है, T2 सिस्टम में एंटर हो रहा है, T2 कैन T2 अलाउड टू डू समथिंग अदर वर्क, ऐसे नहीं किया। इसके पहले वाले हमने वही देखा कि T2 यहाँ पे ये रीड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, साइमल्टेनियसली T2 भी कुछ और कर रहा है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या किया, सीरियल ट्रांजैक्शन। T1 सिस्टम में पहले अलाउ किया है, T1 विल फर्स्ट फिनिश इट्स ऑल द एग्जीक्यूशन, आफ्टर उसको मॉडिफाई करेगा फाइनली डेटाबेस में, देन एंड ओनली देन T2 कैन एक्सेस द डेटाबेस। अगर T2 सिस्टम में पहले आ रहा है तो लेट T2 फर्स्ट कंप्लीट्स ऑल द ट्रांजैक्शन, अपडेट फाइनल वैल्यूज एंड देन T1 को अलाउ करो। तो इससे क्या होगा, डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में होगा। ओके, लॉस्ट अपडेट नहीं होगा। क्लियर, क्लियर। सीरियलिटी मतलब क्या, सीरियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, वन बाय वन शेड्यूल हम लोग डिसाइड कर लेंगे कौन सा ट्रांजैक्शन कब परफॉर्म करेगा। ओके, प्रायोरिटी तो वी कैन नॉट से प्रायोरिटी, शेड्यूल डिसाइड कर लेंगे। ओके, ये कौन सा ट्रांजैक्शन फर्स्ट, अगर T1 फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा तो T2 को वेट करना पड़ेगा। ओके, T2 पहले एग्जीक्यूट होगा तो T1 वेट करेगा, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ T2 T1 विल स्टार्ट। तो दिस इज अ सीरियल ट्रांजैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सीरियल ट्रांजैक्शन। द सिस्टम विल डिसाइड कि कौन पहले रन होगा, ठीक है। So that is a serial transaction. Depending on the type of schedules, okay, we have two types of serializability: conflict and view serializability. Okay, but this topic we will cover in the next lecture because I know this is थोड़ा complex topic है, theory है। Okay, तो आपको ऊपर से जाएगा, अगर मैं पूरा एक साथ करवाऊंगी तो ये this topics we will continue in the next lecture. Okay, तो आज हमने क्या देखा, validation based protocols देखा, ठीक है, what is validation based protocols and what is serial transaction. Okay, in the next lecture we will cover the two types of serializability, so conflict and view serializability. serializability मतलब क्या, serial transaction वन बाय वन, जो अभी हमने यहाँ पे किया ना वन बाय वन। ओके, उसके टू टाइप्स उन्होंने दिखा, एक तो conflict and view। ओके, जो serial transaction हमने देखा उसका टू टाइप्स है, conflict serial transaction and the second is view serial transaction। ठीक है, तो this we will cover in the next lecture। अभी करूंगी तो ऊपर से जाएगा। ओके, क्लियर, क्लियर। ओके, ठीक है। यस, थोड़ा थियरी है, आई कैन अंडरस्टैंड कि थियरी आपको बोर होता है थियरी में, बट वी हैव टू लर्न ना, हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ओनली प्रैक्टिकल से तो नहीं चलेगा। ये थियरी कंसेप्ट वी शुड लर्न। ओके, तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलो, यस, एनीवन हैज एनी डाउट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 17 स्टूडेंट्स आते हैं, किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ओके, तो may I end this lecture? May I end this lecture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you. Chalo, bye. Bye, ma'am.